कहना मैं मैनू बचा ला। मैं तो मूँह चूमिया, मैं क्या कुछ नहीं हुंदा, मेरा पुत्र हिम्मत ना हार के मैनू कहना मैं नहीं बचना। मैं क्या पुत्र लफज ना बोल, दी डेथ हो गई ने। मेरा एक ही बेटा सी, दो बेटियां सी। मैं लोगों दे घरां च काम करके मेहनत मशक्कत नाल पढ़ाया लाया। बुढ़ापे च पुत्र साथ छड्ड गया, जवानी च शोहर छड्ड गया, सारी जिंदगी दुखा च गुजार। इधर गया है उनको देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों बच्चे शोर मचा रहे हैं। उनके घर में शोर था बच्चों का, बचा लो मेरे पापा को, बचा लो मेरे पापा को, बचा लो। कहते हैं कि वो शोर देख के पीछे गया है तो बच्चे देखे उसने, वो बच्चे अगली गली में भाग रहे थे, वो भाग के अगली गली में उनके पीछे गया है कि देखूं क्या हुआ है। जब वहाँ पे जाके उसने देखे ना कि वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही है, बड़ों की लड़ाई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, तो बाकी जब वो फायरिंग कर रहे थे ना तो सारा मोहल्ला जो गया था लड़ाई छुड़वाने देखने, जो भी गया था सब अपनी जान बचा के घरों को भागने लगे हैं। मेरा भाई भी उनमें से ही एक था, वो अपनी जान बचा के घर को भाग रहा था। वो किसी ने पीछे से फायरिंग की है और उसकी कमर में आके फायर लगा है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, आज की स्टोरी दर्दनाक कहानी है एक माँ की जिसका एक ही बेटा था और जिसका नाम गुलाम अली और यतीम था, जिसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। और अभी तक पुलिस जो है इस मामले में कोई इनकी हेल्प नहीं कर रही। मज़ीद इस फैमिली से बात करेंगे। दो बहनों का एक ही भाई था और सालगिरह के दिन उसको कत्ल किया गया है और कुछ दिन बाद उसकी शादी भी थी। मज़ीद इस माँ से बात करेंगे कि इनके बच्चे को किस तरह से कत्ल किया गया, वो जालिम इंसान कौन थे जिन्होंने कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਸੀ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰਾਤ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਕਿਆ, ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਪਾਉਂ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦਾ ਉਸ ਤਰਫ ਅੱਧਾ ਉਸ ਤਰਫ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੂਮਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ। 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਾਇਆ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ? 9:30 ਵਜੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਘਰ ਆਇਆ 9:30 ਵਜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ? ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਚਮਕੀਆਂ ਵੀ ਕਿ
इंसान थोड़ी जी होंदी है ना कि जसामत, बिल्कुल नहीं। 18 बोतल खून दी मेरे महल्ले वाले ने दित्तियां कि बच्चा बच जाए। पूरा अमर सुद्धू मेरे बेटे दे पीछे गया, पूरा अमर सुद्धू। एक बेटा उन्हां दा हर लोग रोंदे, हर लोग रोंदा, बंदा भी ज्यादती होई है सरोत नाल। मेरे 18 साल दी कल्ली दी मेहनत बेवाद ही। एक ही मेरा सहारा सी बुढ़ापे दा मेरा बेटा। मेरियां 2 बेटियां ने, एक बेटी शादीशुदा, एक बेटी पढ़दी भी है। मैं कहना सी पीर मेरे बेटे ने जॉब ते जाना सी, इंटरव्यू हो गई सी बच्चे दी। हाँ जी, इंटरव्यू दिता सी जॉब ते पीर नु स्टार्ट करनी सी। कहना सी मैं हुन परेशान होया कर, हुन अपने अल्लाह के तो दिन फिर जान दे। अंदाजा नहीं सी कि अज ते जिंदगी च दिन फिरनगे। बुढ़ापे च पुत्तर साथ छड्ड गया, जवानी च शोहर छड्ड गया, सारी जिंदगी दुੱਖਾਂ च गुजार। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? नहीं, बिल्कुल देखे भी नहीं, सुने हैं जरूर सी, नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन आपके भाई को फायर लगे हैं, कत्ल हुआ है, उस दिन क्या मतलब किन के साथ लड़ाई थी, लड़ाई किन लोगों की थी और क्या कुछ हुआ था? हमारे घर के ना बिल्कुल सामने वाला घर है, भाई दिलावर लोग जिनका जो कत्ल हो गए हैं, उनके बच्चों की ना कहीं किसी के साथ लड़ाई हुई है। तो भाई मेरा कमरे में था, उसको मैंने ही कहा हुआ था, मेरी मत मारी थी कि अली कभी भी किसी की भी कोई लड़ाई हो ना तो इंसानियत दिखाया करो, बच्चों की लड़ाई हो किसी की भी हो छुड़वा दिया करो। मैंने उसको ये नसीहत की थी, शायद उस दिन उसने मेरी नसीहत पे ये अमल कर लिया है। वो उधर गया है उनको देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों बच्चे शोर मचा रहे हैं, उनके घर में शोर था बच्चों का, बचा लो मेरे पापा को, बचा लो मेरे पापा को, बचा लो। कहते हैं कि वो शोर देख के पीछे गया है तो बच्चे देखे उसने, वो बच्चे अगली गली में भाग रहे थे, वो भाग के अगली गली में इनके पीछे गया है कि देखूं क्या हुआ है। जब वहां पे जाके उसने देखे ना कि वहां पे फायरिंग वगैरह हो रही है, बड़ों की लड़ाई है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, तो बाकी जब वो फायरिंग कर रहे थे ना तो सारा मोहल्ला जो गया था लड़ाई छुड़वाने देखने, जो भी गया था सब अपनी जान बचा के घरों को भागने लगे हैं। मेरा भाई भी उनमें से ही एक था, वो अपनी जान बचा के घर को भाग रहा था। वो किसी ने पीछे से फायरिंग की है और उसकी कमर में आके फायर लगा है। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 23 साल, सिर्फ 23 साल, ना उससे एक दिन ऊपर ना एक दिन कम। आपके भाई की डेथ हुई उसी दिन सालगिरह थी? उसी दिन सालगिरह थी। हमने 25 को ना रात को 12 बजे उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा हुआ था और 26 को उसकी बर्थडे होती है, इसलिए हमने 25 को ना रात को 12 बजे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी और 26 को तकरीबन रात को 10 बजे उसको फायर लगा है। स्टडी भी करता था, जॉब भी हो गई थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, ये गैरिसन यूनिवर्सिटी से, DHA से वो, और जॉब भी उसकी ये सॉफ्टवेयर हाउस में ही हुई थी। उधर इंटरव्यू दिया था, ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था और वहीं पे उसकी जॉब हो गई थी। जिस दिन आपके भाई को फायर लगा है उस दिन कितने लोग थे जिनकी वो फायरिंग की वजह से मौत हुई और कितने लोग जख्मी हैं? 2 लोग फौत हुए हैं, एक तो मेरा भाई जो है जो कि नाहक हुआ है और दूसरा वो हुआ है जिनके बच्चों की लड़ाई थी, और बाकी जो छुड़वाने गए थे सारे डाल के तकरीबन 9 बंदे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल में 2 पड़े हुए हैं, अभी ICU में पड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था, पुलिस नहीं पहुंची मौके पे, इतने लोगों को फायर लग गए, 2 बंदों की डेथ भी होगी, पुलिस क्या ताउन कर रही है आप लोग? पुलिस ने हमारे साथ तो कोई ताउन नहीं किया, बस कहते हैं हम कर रहे हैं। लाहौर इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें से सिर्फ 3-4 बंदे ना ढूंढे जाएं, ठीक है। हमें आके तसल्ली जरूर दी है कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं नजर आ, क्योंकि पुलिस ना कभी हमसे कुछ पूछने आई है, ना हमें उन्होंने बताया है आगे कि भाई आपके मुजरिम मिल गए हैं, वो इधर है इधर नहीं है। हमें किसी ने आगे कुछ नहीं बोला, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें सिर्फ आके सिर्फ वो यही झूठ बोल रहे हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। हर बंदे ने अपने आप को दिखाना होता है कि जी मैं गया था। ख्वाजा साद रफीक साहब आए हैं, वो एक दफ़ा आए हैं, वो चले गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। आज 6 दिन हो गए, वो इंसाफ कहाँ पे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जो भी मुजरिम है वो तो बाहर खड़ा हुआ है, बाहर फिर रहे, वो सरेआम फिर रहे। उनका तो काम है कत्ल करके जगह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो कहीं और चले गए होंगे। माँ जी, आप अपने बेटे के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटे ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ अपील करनी कि मेरे बेटे ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी नाज़रीन, आपने इस बेवा माँ की बात सुनी। एक ही बेटा था, 2 बेटियां थी और 23 साल उस बच्चे को पाला और उसी दिन उस बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है जिस दिन उसकी बर्थडे थी। और उस बच्चे ने मेहनत की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और उसकी जॉब भी हो जाती है और मंडे वाले दिन उसने
جاب پہ جانا تھا اپنی والدہ سے، اس کے یہ لفاظ تھے آخری وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا ہے اور اب مجھے جاب مل گئی ہے. یعنی کہ 18 سال پہلے اس بچے کا والد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. 18 سال تک ماں نے محنت کی، اس بچے کو پالا، اور پل بھر میں جو ہے نا وہ اس بچے کو اس ماں سے چھین لیا جاتا ہے. اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، ان لوگوں سے رشوتیں لی جاتی ہیں، ان لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور پولیس جو ہے، پولیس کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کسی قسم کا کسی کو پکڑنا مشکل نہیں ہے. چاہے کوئی دوسرے ملک میں بھاگ جائے اس کو پکڑنا بھی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو پھر اس لاہور کے اندر جو ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں. 4 قتل اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، لیکن آج تک ان لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا. جیل سے ہو کے واپس آ گئے. اگر ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دی جاتی تو ہو سکتا تھا آج اس ماں کا لال جو ہے وہ ان سے جدا نہ ہوتا. میری پولیس کے اللہ افسران سے گزارش ہے، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ سے اور وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ اسپیشلسٹ معاملے کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HD TV. اللہ نگہبان.